محافظہ کربلا، کربلا کی عظیم پیغامبر، بطلۃ الحریہ، کربلا کی شیر دل خاتون، سفیر حسین ابن علی، ثانیہ زہرا سے متعلق کچھ کلمات جتنا بھی مجلس کا دورانیہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید کے سورہ مالکہ آل عمران کی ایک معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تاکہ تمہید استوار ہو جائے اور پتہ چلے کہ اس بی بی کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا۔ جب پروردگار اہل دنیا کی بات کرتا ہے تو سورہ مبارکہ آل عمران اور آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے سجا دیا گیا، زینت دے دی گئی۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، خواہشوں کی محبت، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، یہ عورتیں، یہ خواتین، یہ بنین، اور اسی طرح سے بڑے بڑے ڈھیر، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، مہر شدہ خوبصورت گھوڑے، والانعام، چوپائے، والحرث، کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، خدا فرماتا ہے یہ سب متاع حیات دنیا ہے۔ اہل دنیا ان چیزوں کو اپنے لیے زینت خیال کرتے ہیں اور اپنا تشخص اور پہچان انہی چیزوں کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ یہ سہولیات ہیں یا ضروریات ہیں کہ پروردگار نے انسان کے لیے خلق کی، جیسا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی کہ اے انسان خلقت کل شیء لکم، انسان میں نے کائنات کی ہر شے کو تمہارے لیے بنایا، یہ سب تمہارے لیے۔ وَخَلَقْتُكَ لِنَفْسِي، اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ لیکن یہ انسان جس مقصد کے لیے خلق ہوا اسے بھول جاتا ہے اور ان چیزوں میں غرق ہو جاتا ہے جو اس کے لیے بنی، اور انہی چیزوں کو اپنی پہچان سمجھنے لگ جاتا ہے اور فخر فروشی اور تفاخر شروع کر دیتا ہے۔ یہ گاڑی ذریعہ ہے، سواری ہے منزل تک پہنچانے کے لیے، اس حد تک اگر اس کا تعلق ہے سواری کے ساتھ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسی سواری کو اپنے فخر اور مباحات کے اظہار کا ذریعہ بنا لے اور اس کو فخر فروشی کا ذریعہ بنائے۔ جیسے آج کل ذہنیتیں ہیں، یہ ہمارے سماجی رویے، ہمارے معاشرتی رویے کہ بس اوقات وہ سواری جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے، اور اس کا یہی کردار ہے انسان کی زندگی میں، لیکن یہ خود فراموش اور خدا فراموش انسان وہ اسی کو اپنا مقصد سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی اس حد تک کہ اسی کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی تصویریں بنائے گا، اور اگر اپنے پاس سواری نہیں ہے تو کسی اور کی سواری کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، پھر تصویر بنائے گا، پھر اسے سوشل میڈیا پہ پکش کرے گا، سب کو پہنچائے گا اپنے فخر کے لیے، مباحات کے لیے، کسی بڑے گھر کے سامنے، کسی مکان کے سامنے، کسی اور منظر کے سامنے۔ حتیٰ اگر کسی کو کسی ایم این اے یا کسی ایم پی اے یا کسی چیف منسٹر یا کسی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے ساتھ کسی گدے پر بیٹھ کر ایک تصویر کھنچوانے کا موقع مل جائے تو وہ ہر آنے جانے والے کو دکھاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد پھر اس کے بیٹے اور پوتے اور پڑپوتے بھی اپنے ڈرائنگ روم میں اس تصویر کو فریم کرا کے لگاتے ہیں اور آنے جانے والے مہمانوں کو تعارف کرواتے ہیں، یہ ہمارے دادا صاحب ہیں اور یہ ہمارے پردادا صاحب ہیں جنہیں اس گدے پر بیٹھ کر صدر صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ یہ رنگین تصویر کھنچوانے کا موقع مل گیا تھا۔ کجا دنیا کا یہ کتا، کجا وہ خالق لم یزل لا یزال جو بشر کو اتنی تکریم دے رہا ہے کہ انسان تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا، لیکن یہ خود فراموش اور خدا فراموش انسان پھر انہی چیزوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ عوام سے نکل کر اب خواص تک چلے جائیے، بس میں تیزی سے گزر رہا ہوں۔ اگر میں ایک مثال عرض کروں تو ہارون الرشید
یہ 3 बर आज़मों का हुक्मरान है और 50 के करीब मुल्क इसके ज़ेर तसल्लुत है। लेकिन जब इंसान खुद पसंदी में मुब्तला हो जाता है तो अली फरमाते हैं कि जब कोई इंसान अपने आप को अच्छा लगने लग जाता है तो बहुत जल्द दूसरों की निगाहों में नापसंद हो जाता है। ये हारून रशीद एक मरतबा इसने तफाखुर के लिए, अपनी दौलत के इजहार के लिए, सरवत के इजहार के लिए, नमूद व नुमाइश के लिए बहुत कीमती तरीन जवाहरात दिए। खैयात को, दर्जी को कहा कि मेरे लिए बेहतरीन पोशाक तैयार करो, मेरे लिए बेहतरीन कुर्ता तैयार करो, खिलअत तैयार करो। और जब वो तैयार हुई, सोने और चांदी के तारों से मुरस्सा, हीरे और जवाहरात उसके ऊपर जड़े हुए। अब जब इसने पहना उस पोशाक को, उस खिलअत को, तो बार बार आईने के सामने जाके खड़ा हो रहा है और खुद को देख रहा है और फिर से महसूस हो रहा है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ इसी अथना में बहलोल आकिल, बहलोल आरिफ, बहलोल फकी, इमाम मूसा कासिम के मायानाज शागिर्द, साहिब असरार सहाबी के खुद वो शख्सियत के जो मुफस्सिर कुरान है, आरिफ अहले बैत हैं, बहलोल और इसके रिश्तेदार भी हैं, हारून के रिश्तेदार हैं। लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए इमाम के हुक्म से उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर जुनून इख्तियार किया। लेकिन इसी कैफियत में जिस तरह से वो मारिफ अहले बैत का प्रचार करते थे, वो अपनी मिसाल आप है। यहाँ तक कि आए बहलोल इसके दरबार में और इसी असना में आईने के सामने खड़े होकर खुद को आरास्ता कर रहा था। जैसे ही बहलोल को देखा तो पहला सवाल किया, कहा बहलोल मैं कैसा लग रहा हूं? और उसके बाद कहा बहलोल अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप मेरी कीमत लगाएं तो आपके ख्याल में मेरी क्या कीमत है? तो बहलोल ने बगौर उसकी कामत की तरफ देखा, सर से पांव तक वो देखने के बाद कहा कि मेरे ख्याल में तुम्हारी कीमत इस वक्त 50 लाख दिरहम के करीब है। ये सुना तो हारून हंसने लगा। कहा पहले मुझे कभी शक होता था कि तू अहमक है, ये जानबूझ के तूने ये अंदाज इख्तियार कर रखा है, लेकिन आज सच में मुझे यकीन हो गया कि तू अहमक है। क्यों? वो क्या किस वजह से तुझे महसूस हुआ? कहा इसलिए कि तू जो 50 लाख दिरहम कह रहा है ये तो सिर्फ मेरी इस खिलअत की कीमत है, सिर्फ इस पोशाक की कीमत है। तो वो लोग ने कहा कि मैं भी इसी की बात कर रहा हूं। कहा तो उसने पूछा मेरी क्या कीमत है? क्या 50 लाख दिरहम ये मेरी तुम्हारी कीमत बनती है? कहा कि मैं सोचता था कि शायद तू पागल है या जानबूझ के ऐसे करता है, लेकिन आज यकीन हो गया कि तू सच में पागल है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि 50 लाख तो सिर्फ मेरी इस खिलअत की कीमत है, ये लिबास जो मैंने सिलवाया तैयार किया इसकी कीमत है, और तुम मेरी कीमत लगा रहा है। तो बहलोल ने कहा मैं भी इसी की बात कर रहा हूं, वरना मेरे ख्याल के मुताबिक तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, कोई अर्जिश नहीं है। वो इंसान बेकीमत होता है दर हकीकत, और खुद वो एहसास महरूमी का शिकार है, एहसास कमतरी का शिकार है, जो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ खड़े होकर अपनी कीमत के तयन और अपनी कीमत का सामने दूसरों के सामने तासुर दे रहा है। बस मेरे अजीजों, ये तमहीदी जुमला था। ये दुनिया है, दुनिया के बंदे हैं जो दुनिया की चीज़ों में अपने लिए जीनत तलाश करते हैं। यहां तक कि आप चले जाइए अहद अमीरुल मोमिनीन में 36 हिजरी में जब अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत दाहिरी का आगाज हुआ तो एक मरतबा मदीना से एक लश्कर चला जिसमें मरवान बिन हकम शामिल है, उतबा शामिल है, तलहा है, जुबैर है, उम्मुल मुमिनीन आयशा, ये सब के सब चले और बसरा में पहुंचकर मौला मुत्तकियान के गवर्नर उस्मान बिन हुनैफ को गिरफ्तार किया और इनकी नाखून उखेड़ लिए, इनके बाल खींच लिए, और इस तरह से उन्होंने बसरा पर कब्जा किया, बैतुल माल पर कब्जा किया, कौमी खजाने पर कब्जा किया। और जैसे ही तलहा और जुबैर, मरवान बिन हकम और उतबा, ये सब अफराद इन्होंने बसरा के बैतुल माल के दरवाजों को खोला और दिरहम दीनार और सोने और चांदी के अंबार पर इनकी निगाह पड़ी, बेसाख्ता इनकी जुबानों से ये जुमले जारी हुए कि आज हमने अपनी मंजिल को पा लिया, खुश है और इसे अपनी मंजिल मकसूद और अपनी जिंदगी का हदफ और मकसद करार दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद अली अमीरुल मोमिनीन ने पलट कर जब दोबारा इन पर हमला किया असहाब जमल पर और बैतुल माल को इनके कब्जे से वागुजार कराया और दोबारा से बसरा पर अपनी हुकूमत कायम की, और जैसे ही बैतुल माल के दरवाजे खुले अमीरुल मोमिनीन की निगाह जैसी सोने और चांदी के ढेरों पर पड़ी
दिरहम और दीनार के ढेरों पर पड़ी तो इतनी हीच और इतनी पस्त और इतनी हकीर है दुनिया अली इब्न अबी तालिब की निगाह में कि अपनी जुबान से लफ्ज़ सोना अदा करना मुनासिब नहीं समझा, लफ्ज़ चांदी जुबान से अदा करना मुनासिब नहीं समझा। ज़हब भी कह सकते थे, फिद्दा भी कह सकते थे, जिस तरह से कुरान फरमा रहे ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फिद्दा वल खैरिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ये दुनिया की मता जो अहले दुनिया और दुनिया के बंदों के लिए जीनत है, लेकिन जैसी अली की निगाह पड़ी सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेरों पर, इन लफ्जों के साथ दुनिया की हकारत को अयां किया, या बैदा व या सफरा, ए जर्द ए सफेद, यानी ए सोने और चांदी, हो रा गैरी, जा अली के अलावा किसी और को धोखा देना। अली तो इस दुनिया को 3 तलाक़ बाइन दे चुके हैं, जिसके बाद रुजू मुमकिन नहीं। तो जब ये सोने और चांदी ये ढेर अली के लिए जीनत न बन सके तो फिर कौन सी चीज जीनत बनेगी? क्या ये हुकूमत जीनत बन सकती है? हमारे यहाँ एक सूबे की हुकूमत हासिल करने के लिए इंसान तमाम तकाज़ों को फरामोश कर देते हैं, तमाम इंसानी अखलाकी कदरों को फरामोश कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। इस दर्जा अपनी खुदी को, अपनी हैसियत को, अपनी अना को, अपने वकार को, अपनी हर चीज को दांव पर लगाकर एक निशिस्त के लिए, एक सूबे की हुकूमत के लिए लोग दांव पर लगा देते हैं। और अली दुनिया की 3 बर्र आज़मों के मुतलकुल अनान हुक्मरान, और जंगे सिफ़ीन के मौका पर अली मकाम ज़ीकार पर बैठे अपने हाथों से फटी हुई जूती गांठ रहे हैं, और आपके चचा का बेटा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैरत से फटी हुई निगाहों से देख रहे हैं कि 3 खिलाफतों का, 3 बर्र आज़मों का मुतलकुल अनान हुक्मरान अली अपने हाथों से फटी हुई जूती गांठ रहे, हैरत से टिकटिकी बांधे देखे जा रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। और जब अमीरुल मोमिनीन ने आंख उठाकर देखा अब्दुल्ला हैरत से देखे जा रहे हैं, तो अब सवाल पूछा, फरमाया कि ए इब्ने अब्बास बता, तुम्हारी निगाह में इस जूती की क्या कीमत होगी? तो दोबारा बगौर देखा इब्ने अब्बास ने, और देखने के बाद कहा अमीरुल मोमिनीन अगर नाराज न हो, आपकी जूती इतनी फट चुकी है, इतनी बोसीदा और कोहना हो चुकी है कि अगर आप इसे फेंक दे तो अरब का फकीर तरीन शख्स भी नहीं उठाएगा, ये इतनी नाकारा हो चुकी है। ये सुना तो अली इब्ने अबी तालिब ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तरफ देखा, और देखने के बाद फरमाया ए इब्ने अब्बास सुनो, अली इब्ने अबी तालिब की निगाह में तुम्हारी हुकूमत और सल्तनत इस फटी हुई जूती से भी कमतर है। सैयदुल उलमा अल्लामा अली नकी नक्कन ने यह जुमला कहा कि तारीख इंसानी में और तारीख आदम में और तारीख आलम में और तारीख खातम में और तारीख बशर में और तारीख इस्लामी में अली वो वाहिद हुक्मरान है तो ये जुमला कह सकता है कि तख्ते सल्तनत पस्त और अली की जूती बुलंद, तख्ते सल्तनत पस्त और अली की जूती बुलंद। सिर्फ अली कह सकते हैं, क्यों? इसलिए कि तख्ते सल्तनत पर कभी बातिल के पांव आए और कभी हक के पांव आए, लेकिन अली की जूती वो मुबारक जूती है जिसमें हमेशा हक के पांव आए। ये अली के जो हुकूमत जिस अली के लिए जीनत न बन सके, बायस शरफ न बन सके, फिर कौन सी चीज जीनत है? 36 हिजरी में मौला मुत्तकियान की हुकूमत शुरू हुई और 25 साल आफ्ताब इमामत और विलायत काले बादलों की ओट के पीछे पिनहान रहने के बाद आज मनसे शहूद पर जलवागर हो रहे हैं। और अली मस्जिद नबवी में जब पहुंचे हैं तो खचाखच मस्जिद नबवी अहले मदीना, मिस्र से आए हुए जो अफराद थे, कूफा से आए हुए अफराद थे, खचाखच भरी हुई है। और चूंकि अंदीशा था, इससे पहले बनु उमैया वलीद बिन उकबा बिन अबी मुईत की सरपरस्ती में ये पैगाम भेज चुके थे कि आप अपने मंशूर से दस्तबरदार हो जाएं तो हम आपकी बैत कर लेंगे, और अगर आपने हमारी बातें ना मानी और लूटा हुआ माल हमसे वापस लेने की बात की तो हम शाम जाकर मुआविया इब्न अबू सुफियान से मुल्हक हो जाएंगे। हजरत ने जो जवाब दिया वो तफसीली है, इस वक्त बयान का वक्त नहीं। यहां तक के अब अंदीशा था कि मदीने के हालात को खराब करेंगे, इसलिए मौला मुत्तकिया ने अपने मोतमद सहाबी, अपने साथी मालिक अश्तर नखई से कहा कि आप अपने कबीले के जवानों के साथ मिलकर हसास मकामात पर ड्यूटी दें, पहरा दें।
मबादा बनु उमैया नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें, कत्ल गारत गरी न करें, लूट मार न करें, तो मालिक इश्तर नक़ई हसास मकामात पर बिलखुसूस बाजार मदीना में चल रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, तलवारें उठाए हुए अपने कबीले के जवानों के हमरा। यहां तक कि ऐसे में एक अजनबी मदीने में दाखिल हुआ, देखा तमाम दुकानें बंद हैं, दुकानों पर ताले पड़े हुए हैं, हू का आलम है, सन्नाटा है, और मालिक अश्तर चंद सिपाहियों के हमरा तलाया चल रहे हैं, फिर रहे हैं। ऐसे में उसने आकर करीब आकर पूछा, क्या कोई मुसीबत है, परेशानी है, कहता पड़ा है, कोई वबा फूट पड़ी है, या खाना जंगी शुरू हो गई है और लोग जंग के लिए कहीं चले गए, क्या हुआ, क्यों सन्नाटा है, हू का आलम है, क्यों कोई फर्द नजर नहीं आ रहा। कि शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मुसलमानों ने तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ्फान को कत्ल कर दिया, और अब खलीफतुल मुस्लिमीन अली इब्ने अबी तालिब है, और आज अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत ज़ाहिरी का पहला खुतबा है। वो अली जो वारिसे मिंबर सुलूनी और बाब मदीनतुल इल्म में, सारा मदीना सिमट कर मस्जिद नबवी में अली के खुतबे को सुनने के लिए जमा हुआ है। तो बजाय इससे कि आप यहां रुक कर इंतजार करें जब तक खुतबा मुकम्मल नहीं होगा, नमाज तमाम नहीं होगी, दुकानें नहीं खुलेंगी, तो बजाय इससे कि आप यहां रुक कर इंतजार करें, आप भी चले जाएं, चल के इस्तिफादा करें। ये कौन है आने वाला? मुअर्रिखीन ने लिखा, इस आने वाले शख्स का नाम है सासा बिन सोहान अबदी। ये सासा, इससे मुतल्लिक शहीद मुताहरी ने तहरीर किया है कि तारीख इस्लामी में ये पहला शख्स है जिसे फलसफे यूनान पर महारत हासिल थी, जिसे फलसफे पर महारत हासिल थी, दीगर उलूम पर, हयात पर, रियाजी पर, हिंदसा पर महारत रखता था। अगर आज यहां मजलिस है और आप किसी रास्ता जब मजलिस में आ रहे हो तो किसी दोस्त को देखें और उससे कहें आप भी आ जाइए मजलिस पे, तो वो चल पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा दानिश्वर है, कई कई किताबों का राइटर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, और अगर आप उससे कहेंगे तो पहली बात ये पूछेगा कि पढ़ने वाला कौन है, इसलिए कि पहले वो वज़्न करेगा कि मुझे वो वहां जाकर कुछ इस्तिफादा होगा, कुछ फायदा मिलेगा, कुछ मौका मिलेगा या नहीं। तो इसीलिए सासा बिन सोहान अबदी ने जब सोचा, वो जान चुके थे पिछले तमाम अरसे में, देख चुके थे कि किसके पास कितना इल्म है, इसलिए उन्हें बहुत हद तक अंदाजा था। सोचा कौन है जो मुझसे भी ज्यादा जानता है, इसलिए कि 25 साल आफताब इमामत काले बादलों की ओट के पीछे मख्फी रहा, लोग अली को भूल चुके थे, अली चुके पसे मंजर में से गायब थे। इसलिए एक मर्तबा ख्याल आया कि वो कौन है जो मुझसे भी ज्यादा जानता होगा, ये सोचकर आगे बढ़ने लगे। फिर मालिक अश्तर नक़ई के चेहरे पर निगाह पड़ी, इतना पुरवकार, पुरहैबत, मोतबर इंसान, अगर वो इतने इसरार से कह रहा है तो चलो चल के सुनना चाहिए, कुछ तो बात होगी जो ये इतनी ताकीद कर रहे हैं, जाना चाहिए, सुनना चाहिए। सासा बिन सोहान अबदी मस्जिद नबवी की तरफ चले। जब मस्जिद में पहुंचे, मस्जिद खचाकर नमाजियों से भर चुकी है और जगह नहीं हो, बैठे हो, खुतबा शुरू हो चुका है। यहां तक कि जहां जगह मिली सासा बैठे, हजरत का खुतबा शुरू है और हजरत अपने खुतबे में आ चुके 25 सालों के बाद लोगों के सामने आ रहे हैं। इसलिए आज अली इब्ने अबी तालिब खुद सनाई नहीं, खुद शनासाई के मरहले में अपने तारुफात पेश कर रहे हैं कि पहचानो मैं कौन हूं, मेरे बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, मेरे बारे में इमामुल अंबिया खत्मी मर्तबत ने क्या फरमाया। अपने तारुफात बयान कर रहे हैं, अपना आगाज बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे भेजने के लिए अपने घर का इंतखाब किया, परवरदिगार ने मुझे ये शरफ अता किया, ये शरफ अता किया, ये शरफ अता किया। यहां तक कि सासा, कभी होता है ऐसे कि अगर कहीं पर ठीक से आवाज ना आ रही और खतीब ऐसी गुफ्तगू कर रहा है कि जो वजनी हो, जानदार हो, तो सुनने वाला जो इल्मदोस्त होता है वो चाहता है कि जगह बदल दे, आगे चला जाए, ऐसी जगह पहुंचकर सुने जहां पर बेहतर अंदाज में आवाज को सुन सके। तो सासा चूंकि फासले पर थे, अगरचे सुन रहे थे, लेकिन इसी कोशिश में थे कि और करीब चला जाऊं, और करीब चला जाऊं। और सासा बिन सोहान सफों के बीच में से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं और करीब से करीब तर होते चले जा रहे हैं, यहां तक कि आगे बढ़ते बढ़ते पहली सफ में जा पहुंचे। और इस कदर वज्द में है, इतने मजजूब हैं, मशहूर हैं अमीरुल मोमिनीन के खिताब को सुनने में, इसलिए कि वे सासा जानते कि अली क्या बात कर रहे हैं। यहां तक कि एक मर्तबा अभी हजरत का खुतबा चल रहा था कि सासा वसत में उठकर खड़े हुए, दस्ते अदब जोड़ दिए और अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे मुआफ कर दीजिए, अली मुझे मुआफ कर दीजिए कि मैंने आपके खुतबे को कता किया, आपके कलाम को कता किया, आपके खिताब को कता किया, लेकिन इससे ज्यादा तहम्मुल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था, इससे ज्यादा बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं रहा था। अरे अली, पहली बार आपको देखा है, पहली मर्तबा आपकी गुफ्तगू सुनी है, लेकिन आज आपके खिताब को सुनने के बाद ये महसूस कर रहा हूं, या अली मा ज़य्यनकल खिलाफा बल ज़य्यनतहू, अरे अली
علی اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے خلافت کو زینت دی۔ اے علی اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے خلافت کو زینت دی۔ علی آج میں نے آپ کے خطاب میں آپ کی زبان سے سنا ہے، آپ مولود کعبہ ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجنے کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیا، لیکن علی مجھے معاف کیجئے، آج آپ کو دیکھنے کے بعد، آج آپ کو سننے کے بعد ساسا یہ محسوس کر رہا ہے کہ کعبہ میں پیدا ہونا آپ کے لیے باعث شرف نہیں ہے، آپ کی ولادت سے کعبہ کو 4 چاند لگ گئے۔ اے علی آپ کے وجود سے کعبے کو اللہ نے زینت عطا کی، آپ کے وجود سے بشریت کو زینت ملی، کائنات کو زینت ملی۔ اے علی آپ کے وجود سے حکومت کو زینت ملی۔ اے علی آپ کے وجود سے پروردگار نے عالم انسانیت کو زینت عطا کی۔ ساسا کا جی چاہ رہے بولتے چلے جائیں، بیان کرتے چلے جائیں، اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار کرتے چلے جائیں، لیکن امیر المومنین نے فرمایا ساسا خاموش ہو جائیے اور بیٹھ جائیے، مجھے خطبہ مکمل کرنے دیجئے۔ امیر المومنین نے خطبہ مکمل کیا، نماز پڑھائی، مسجد سے چلے اور ساسا کا سر جھکا ہوا علی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضرت نے آواز بلند کی، ساسا قریب آؤ، اب بتاؤ مسجد میں کیا کہہ رہے تھے؟ ساسا نے ایک ایک لفظ کو دہرانا شروع کیا، علی اس کائنات کی زینت آپ کے وجود سے ہے، کعبے کی زینت آپ کے وجود سے ہے، خلافت کی زینت آپ کے وجود سے ہے، اللہ نے آپ کے وجود سے اسلام کو زینت عطا کی، اللہ نے آپ کے وجود سے اپنی کتاب قرآن مجید کو زینت عطا کی۔ امیر المومنین نے فرمایا ساسا جو بھی تو نے کہا سب صحیح کہا، لیکن شاید تجھے معلوم نہیں ہے اللہ نے علی کو ایسی بیٹی عطا کی ہے جو علی جیسے بابا کے لیے باعث زینت ہے۔ اللہ نے علی کو ایسی بیٹی عطا کی۔ یہ لفظ مرکب ہے، زین و اب، زین یعنی زینت، اب باپ، وہ بی بی جسے علی جیسے باپ کے لیے زینت قرار دے کے بھیجا گیا۔ یہ نام خود علی نے نہیں رکھا ہے، جب بی بی کا نور دنیا میں ظاہر ہوا تو سیدہ نے جناب بطول فاطمہ زہرا نے خواہش کی کہ آقا آپ اپنی بیٹی کا نام تجویز کریں کہ میں اللہ کے رسول پر سبقت نہیں لے جا سکتا، یہاں تک کہ انتظار کیا گیا اور آقا ختمی مرتبہ تشریف لائے اور آپ کے ہاتھوں پر ثانیہ زہرا کو رکھا گیا اور بی بی نے کہا کہ اپنی نوازی کے لیے نام تجویز کیجیے۔ پیغمبر نے فرمایا میں ہرگز اپنے اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا، یہاں تک کہ کچھ فاصلہ زمانے کے بعد جبرائیل نازل ہوئے، عرض ادب کیا، سلام کیا اور اس کے بعد پیغام پہنچا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ یہ لفظ مرکب ہے دو لفظوں سے، جیسے عرض کیا زین و اب، یعنی علی جیسے باپ کے لیے زینت۔ یہ زینت کسے کہتے ہیں، زین کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، جمال کسے کہتے ہیں؟ میں شرمندہ ہوں، اردو محدود زبان ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ظاہری خوبصورتی کو بیان کرنا ہو تب بھی لفظ خوبصورتی کہتے ہیں، باطنی خوبصورتی کو بیان کرنا ہو تب بھی۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں یہ پنکھا خوبصورت ہے تو کہیں گے خوبصورت ہے، اگر کسی عالم کا بیان سنیں اور آپ کو اچھا لگے تو آپ باہر چل کے کہیں گے کہ کیا خوبصورت گفتگو تھی۔ نہ، عربی میں ایسے نہیں ہے، حتیٰ فارسی میں بھی ایسے نہیں۔ آپ جاتے ہیں زیارات کے لیے، اگر کوئی ظاہری چیز کی خوبصورتی بیان کرنی ہو تو ایرانی کہتے ہیں، فارسی زبان کہتے ہیں کہ خیلی قشنگ، بہت خوبصورت ہے، لیکن باطنی چیز اگر کوئی علمی مطلب ہے، کوئی ایسی گفتگو ہے تو پھر وہ قشنگ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کہیں گے خیلی زیباس، یہ بہت زیبا ہے۔ تو زین سے مراد وہ حسن باطنی ہے۔ اگر میں مختصر ایک جملہ عرض کروں صاحبان معرفت، اب توجہات اس عروج پہ ہیں کہ یہ بات میں بآسانی کہہ سکتا ہوں، یہ زین کسے کہتے ہیں، جمال کسے کہتے ہیں؟ لفظ جمال جو زین جو قرآن استعمال کر رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ انسانی کمال۔ ایک جملہ عرض کروں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، اور یہ جملہ روح قرآن ہے، اسے لوہے دل پہ نقش کر لیجئے تاکہ تمہید بنے اور اگلی بات کہہ سکوں، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، یہی فرق ہے۔ لوگ تقابل کرتے ہیں محمد و آل محمد کے ساتھ، کیا فرق ہے ہم میں، تمام انسانوں میں اور محمد و آل محمد میں؟
ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ نے ہمیں انسان بننے کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے، اور محمد و آل محمد کو ہمیں انسان بنانے کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اور انسانیت کے سفر کا نام کمال ہے۔ ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے۔ آپ قومی ترانے میں پڑھتے ہیں رہبر ترقی و کمال۔ ممکن ہے یہ بچے سمجھتے ہو کہ ترقی کمال ایک چیز ہے، نہ، ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے۔ ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے۔ جب ہم افق میں سفر کرتے ہیں یہ ترقی ہے۔ اگر پہلے کوئی 16ویں گریڈ پہ ہو، 18ویں گریڈ پہ چلا جائے، اس نے ترقی کر لی۔ پہلے MPA تھا، اب MNA بن گیا، اس نے ترقی کی۔ عہدے میں اضافہ، منصب میں اضافہ، جائیداد میں اضافہ، بینک بیلنس میں اضافہ، یہ ترقی ہے۔ پہلے چھوٹا مکان تھا، بڑا مکان بنا لیا۔ پہلے چھوٹی گاڑی تھی، بڑی گاڑی ہو گئی، 2 گاڑیاں ہو گئی، 5 گاڑیاں ہو گئی۔ یہ ترقی ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء کو ہرگز انسانوں کو مترقی بنانے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہم ترقی کریں تب بھی انسان ہے، ترقی نہ کریں تب بھی انسان ہے۔ جو بڑے بڑے گھروں میں رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو غار کے اندر رہتا ہے وہ بھی انسان ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں حصول کمال کے لیے خلق کیا۔ کمال حرکت عمودی ہے، اور اللہ نے ہمیں کمال حاصل کرنے کے لیے، کمال کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کے علم میں اضافہ ہو، معرفت میں، بصیرت میں، حکمت میں، عفت میں، شجاعت میں، استقامت میں، اخلاقی صفات میں، روحانیت میں، نورانیت میں، تقوی میں، آگاہی میں، شعور میں اضافہ ہوتا ہے، یہ کمال ہے۔ اور اللہ نے ہمیں کمال کے حصول کے لیے خلق کیا ہے۔ اور کمال جب ابتدائی شکل میں ہو تو اسے بتانا پڑتا ہے، زبان سے کہنا پڑتا ہے، لیکن جب یہ کمال بشر، میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں اور مفہوم بیان کرنے لگا ہوں، ذہن کا مطلب کیا ہے، جمال کا مطلب کیا ہے، جب انسانی کمال اپنے درجہ کمال تک پہنچ جاتے ہیں، اپنی انتہائی حد تک پہنچ جاتے ہیں، وہ انسانی کمال، بشری کمال اور عروج، معراج، رفعت اور بلندی کی آخری حد کو چھوتا ہے، تو اب یہ کمال از خود ظاہر ہونے لگتا ہے، جس طرح سے فوارے سے پانی نکل نکل کر چھن چھن کے باہر آتا ہے۔ کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ اب سمجھیں کہ اللہ نے خود اس بچی کا نام زینب کیوں رکھا، یعنی علی کے کمالات کے اظہار کے لیے اللہ نے اس بی بی کو منتخب کیا ہے۔ یعنی علی کے کمالات اگر درجہ انتہا پر پہنچ جائیں اور ظاہر ہونے لگیں تو علی کے کمالات کے ظہور کی کیفیت کا نام زینب بنت علی ہے۔ بظاہر یہ بی بی پنجتن پاک میں شامل نہیں، لیکن بباطن یہ بی بی خلاصہ ہے پنجتن پاک کا، اسارہ ہے پنجتن پاک کا۔ یہ بی بی اپنی زندگی میں کبھی محمد بن گئی، کبھی علی بن گئی، کبھی فاطمہ بنی، کبھی حسن بنی، کبھی حسین بنی، کبھی اور آگے بڑھی اور عباس بن گئی۔ کہاں محمد بنی؟ ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں، شرمندہ وقت محدود ہے، بس یہ 2 سے 3 پہلو عرض کروں، اور باقی بی بی کی زندگی سے متعلق اگر پھر حاضر ہونے کا موقع ملا، جہاں سے بات چھوڑوں گا، بے ادبی ہے کہ ایک نشست میں میں بی بی سے متعلق بات کروں، گفتگو کروں، پھر عرض کروں گا آج کی حد تک بس ان چند جملوں کو اپنی سماعتوں میں محفوظ کیجئے۔ کب کردار مصطفی ادا کیا؟ میں نے پیغمبر کی سیرت کو پڑھا ہے، پیغمبر نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ 23 سالہ عہد رسالت میں بالخصوص علنی طور پر جو 20 سال رسالت کی ذمہ داری ادا کی، باقی تمام تر احکامات دین بیان کیے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو پیغمبر نے حیات طیبہ میں قدم قدم پر بیان کیا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے، ان کی امامت ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کا شرف ہے، ان کا مقام ہے۔ یہاں تک کہ ابن عباس سے روایت ہے، حبر الامہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں 23,000 احادیث کو سنا ہے۔ اکیلے ابن عباس نے 23,000 احادیث کو سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا وہ علی کی عزت ہے، علی کا شرف ہے، علی کا مقام ہے، علی کی امامت ہے، علی کی ولایت ہے۔ ساری زندگی پیغمبر نے علی کی ولایت کو زبان سے بیان کیا اور میدان خم غدیر میں عمل سے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بازو بلند کیا نہ، میں نے سیرت اور حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، پیغمبر خود پیچھے چلے گئے، علی کو سامنے لے کے آئے اور علی کے یہاں اس مقام پر پیغمبر نے ہاتھ رکھ کر علی کو یوں اٹھایا کہ لوگوں کو علی نظر آ رہے تھے لیکن نبی نظر نہیں آ رہے تھے۔
पैगंबर पहले अमल से पैगाम दे रहे थे कि अगर मैं तुम्हारी निगाहों से ओझल हो जाऊं तो किसी इधर उधर दाएं बाएं सकीफे में जमा होने की कोशिश न करना। जब मैं तुम्हारी निगाहों से ओझल हो जाऊं तो फौरन अली की तरफ अपना रुख कर लेना। और फिर अली की विलायत का ऐलान किया, फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। सारी जिंदगी पैगंबर ने अली की विलायत का ऐलान जुबान से किया, मैदान खुम गदीर में अमल से किया। मुझे बताएं, पहले अली की विलायत का ऐलान पैगंबर ने किया, दूसरे अली की विलायत का ऐलान कौन करे? अली ज़ैनुल आबिदीन की विलायत का ऐलान कौन करे? इसलिए कि जिसने ऐलान करना था वो तो शिमर के 13 ज़रबों से ज़ेरे खंजर शहीद हो गया। ये काम सानिए ज़हरा ने अंजाम दिया, यहाँ किरदार मुस्तफवी निभाया। जब जलते हुए खेमों में एक मरतबा बीमार इमाम के पास रुक कर मसला पूछ रही है, सैयद सज्जाद बताएं क्या करें, जल के मर जाएं या बेरिदा खेमों से बाहर निकल जाएं? क्या सानिए ज़हरा ये मामूली मसला नहीं जानती थी? दरहाली कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब उबैदुल्लाह इब्ने मरजाना ने पूछा, अली की बेटी बता तूने करबला में अपने खुदा को कैसा पाया? सोच रहा था कि अली की बेटी फरियाद करेगी, गिरिया करेगी, हम हंसेंगे, लेकिन अल्लाह रे मारिफत ज़ैनब बिन्त अली, लम्हाए ज़ैनबी में जुम्बश पैदा हुई। फरमाया मा रअयतु इल्ला जमीला, हमने करबला में रोज़ आशूर सिर्फ जमाल खुदा का ज़ुहूर देखा। ये इतना बड़ा जुमला था कि जमाने के इमाम नायब हुसैन वली खुदा इंसान कामिल इमाम वक्त अली ज़ैनुल आबिदीन ने गिरिया करते हुए अपनी फूफी ज़ैनब की तरफ देखा और ये जुमला अपने दहन से अदा किया कि ये पूरी कायनात में इन्ना अम्मती ज़ैनब आलिमतुन गैरु मुअल्लमा, इस पूरी कायनात में सिवाय अल्लाह के कोई भी मेरी फूफी ज़ैनब का उस्ताद नहीं है। ये बीबी आलिमा गैर मुअल्लमा है, इस बीबी का उस्ताद, इस बीबी का मुअल्लिम, इस बीबी का मुर्शिद सिर्फ खुदा है। वो बीबी जो शागिर्द खुदा है, वो बीबी जो मदरसा इलाहिया की फारिग तहसील है। क्या ये मामूली मसला नहीं जानती थी? नहीं जानती थी। फिर सैयद सज्जाद से क्यों पूछ रही है? मसला पूछकर सैयद सज्जाद की विलायत का ऐलान कर रही है, मसला पूछकर सैयद सज्जाद की इमामत का ऐलान कर रही है कि अब रूह जमीन पर नायब हुसैन वली खुदा इंसान कामिल अली ज़ैनुल आबिदीन ने अभी तो जुबान से ऐलान किया, अभी तो जुबान से ऐलान किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसी बीबी ने अपने अमल से ऐलान किया, अमल से ऐलान किया। खुद बताइएगा और जाते हुए वज़न कीजिएगा कि मैदान खुम्मे गदीर में 18 ज़िलहज को वल्लाहु यासिमुका मिनन नास की जमानत जारी होने के बाद अली को अपने बाजुओं पर उठा के बुलंद करके मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला कहना, ये ज्यादा मुश्किल था या जलते हुए खेमों में 55 बरस की ज़ईफा का, जलते हुए खेमों में 55 बरस की ज़ईफा का 22 बरस के जवान को अपनी पुश्त पे उठा कर लेके आना? क्या किया? यहां पर किरदार मुस्तफवी अदा किया। यहां ये बीबी मोहम्मद बनी और कभी ये बीबी अली बनी। कहां? शहर कूफा के दरवाजे पर। सारा कूफा उमड़ कर दरवाजे पर जमा था, हद निगाह तक लोग ही लोग थे। इतना हुजूम था कि जिस नेजा बरदार ने इमाम हुसैन का सर नेजे पर बुलंद कर रखा था, इसे किसी का झटका लगा, इसके हाथ से नेजा छूटा, सर हुसैन बुलंदी से जमीन पर गिरा। सानिए ज़हरा से यह मंजर बर्दाश्त न हुआ। फरमाया सैयद सज्जाद उमर इब्ने साद से कहें, इन लोगों से कहे खामोश हो जाएं, मैं कुछ कहना चाहती हूं, इन्हें चुप करवाए, मैं खुतबा देना चाहती हूं। जैसे ही सैयद सज्जाद ने उमर इब्ने साद से अपनी फूफी ज़ैनब का पैगाम पहुंचाया, ये हंसने लग गया। कहा सैयद सज्जाद आपकी फूफी ज़ैनब अजीब बातें करती है, ये इतना बड़ा इज्तिमा है, अगर यहां पर खुद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफे का गवर्नर पहुंच जाए और वो इन्हें खामोश करवाना चाहे तो इतनी बड़ी जमईयत को, ये हजारों का ठाठे मारता हुआ समंदर, वो भी इन्हें खामोश नहीं करवा सकता। जैसे ये पैगाम पहुंचा सानिए ज़हरा तक, एक मर्तबा फरमाया उमर इब्ने साद अगर तू इन्हें खामोश नहीं करवा सकता तो अब अली की बेटी खामोश करवाएगी। और मुअर्रिखीन ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा, जब बीबी ने खुतबा शुरू किया इतना जलाल था, इतनी हैबत थी अली की बेटी के लहजे में, यहां तक कि जानवरों के गलों की घंटियां भी खामोश हो चुकी थी। और इसी बाजार से, इसी मकाम से मौला मुत्तकियान का एक सहाबी गुजर रहा था जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने अफीफ। ये नाबीना हो चुके थे। एक मर्तबा जब बीबी की खुतबे की आवाज अब्दुल्ला इब्ने अफीफ के कानों से टकराई, रुके और रुक कर अपने जवान साल बेटे से पूछते हैं, बेटा क्या कयामत बर्पा हो गई?
क्या हश्र बर्पा हो गया? कहा नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहा बेटा, आज से 20 साल पहले 40 हिजरी में 21 रमजान की शब में जब आका अली की इयादत के लिए गए थे तो वक्त आखिर हमें रुखसत करते हुए अली इब्न अबी तालिब ने अपनी जख्मी पेशानी पर हाथ रखकर हम सब से ये कहा था, सल्लमकुमुल्लाह, जाओ मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूं। अब अली की आवाज माशर में सुनोगे, अब अली की आवाज कयामत के दिन सुनोगे। कहा बेटा, आज से 20 साल पहले अमीरुल मोमिनीन अली ने हमसे ये कहा था, मेरी आवाज माशर में सुनोगे, लेकिन ए बेटा, मैं इस मकाम पर अली की आवाज सुन रहा हूं। कहा बाबा, वो अली की आवाज नहीं है, अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब बिन्त अली की आवाज। यहां ये बीबी अली बनी और कभी ये बीबी हसन बनी, कभी ये बीबी हसन बनी, वो बीबी जो अली अकबर की लाश पर इस तरह से गिरिया कर रही थी कि देखने वालों को महसूस हो रहा था कि अभी बीबी की रूह कफस अंसरी से प्रवास कर जाएगी, अभी बीबी दुनिया से रुखसत हो जाएगी। लेकिन जब ओन मोहब्बत की लाशें आई तो इस तरह से खड़ी थी गोया इनको जानती ही नहीं है, गोया इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। कौन समझेगा इस सुकूत के राज को? यहां ये बीबी हसन बनी और कभी ये बीबी हुसैन बन गई। जिस तरह से रोज़े आशूर हर पुकारने वाले की आवाज पर हुसैन तीर की तरह से जाते थे और 72 की लाशों को उठा के लाते थे, इसी तरह से करबला से कूफा, कूफा से शाम, सारे सफर में जब कोई छोटा बच्चा या बच्ची ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिरता था, हुसैन की अमानतों को बचाने के लिए बीबी बार बार काफिले को रोकने के लिए खुद को ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिराती थी ताकि मेरे गिरने से काफिला रुक जाए, हुसैन की अमानतें बच जाएं। और कभी ये बीबी फातिमा बनी और कभी ये बीबी अब्बास बनी। कहां? शाम गरीबा, जब बीबी ने टूटी हुई तलवार उठाई और जले हुए खेमों के गिर्द पहरा देना शुरू किया और एक मर्तबा मक्तल की तरफ रुख किया, लाश अबुल फजल अब्बास की तरफ, और कहा अब्बास उठो, देखो कल जो काम तुम अंजाम दे रहे थे आज तुम्हारी बहन ज़ैनब अंजाम दे रही है। और कभी ये बीबी फातिमा बनी। बहुत मुख्तसर करके सिर्फ 2 जुमले अर्ज करूं। कहां? जब बीबी शाम पहुंची है। मेरे अजीजों, इतना मुश्किल मरहला है, ये इतना मुश्किल जुमला है कि बड़े बड़े उलमा यहां पर पहुंचकर घंटों गिरिया करते हैं। यहां तक के शिराजी बुजुर्ग जब किसी जाकिर ने अपनी जुबान से जुमला कहा कि अली की बेटी शाम के बाजार में, इतना गिरिया किया कि गश खा गए, बेहोश हो गए और 4 घंटे तक बेहोश रहे। कितना? कुजा अली की बेटी, कुजा यजीद का दरबार, कुजा बाजार शाम, सानिए ज़ारा बाजार गई। मेरे अजीजों, मैंने पढ़ा है कि यकुम सफर को शाम शहर के दरवाजे पे पहुंची है। 3 दिन शाम शहर के दरवाजे पर बिठाया गया, बाजार सजाए जा रहे हैं, दरबार सजाए जा रहे हैं। और 3 दिन बिठाने के बाद पहले मरहले में बाजारों से गुजारा गया, बाजारों से गुजारा गया। और मैंने पढ़ा है तैयारियां इस तरह से की गई थी कि खवातीन घरों की छतों पर बड़ी मिकदार में पत्थर लेके गई थी, आग लेकर गई थी, यहां तक कि गर्म खोलता हुआ पानी लेकर गई थी। मैंने पढ़ा जहां से ये बीबियां बच्चे गुजर रहे हैं उनके सरों पर संगबारी की जा रही है, पत्थर मारे जा रहे हैं, गर्म खोलता हुआ पानी उनके सरों पर गिराया जा रहा है। इतने पत्थर मारे गए, अली की बेटियां लहूलुहान हो गई, इसके बावजूद रुकी नहीं, यहां तक कि सानिए ज़ारा कोहनियों के बल चली, लेकिन आगे बढ़ती चली गई। क्यों? अपने भाई हुसैन के मकसद को बचाना है। मैंने पढ़ा 11 सहाबा किराम हैं जिनका ताल्लुक शाम से है। इनमें से एक सहाबी हैं जिनका नाम साल इब्न साद अस-साइदी है। ये कहीं बाहर थे, जब ये शाम वापस आए देखा कि मदीने शाम की गलियों में दीवारों के दोनों तरफ खून लगा हुआ है। तो एक मर्तबा पूछते हैं, अहले शाम से सवाल करते हैं, क्या अब तुम जानवरों को गलियों में ज़िबा करने लग गए? क्या जानवरों को गलियों में ज़िबा करते हो? कहा नहीं ऐ सहाबी और रसूल, जहां हमने जानवरों को ज़िबा नहीं किया, इन गलियों से मोहम्मद और अली की बेटियों को गुजारा गया। इतने मुश्किल सफर उबूर किए, लेकिन आगे बढ़ती चली गई, यहां तक के यजीद के दरबार तक पहुंची है, यजीद के दरबार के दरवाजे पर पहुंची है। ये इतना मुश्किल मरहला है मेरे अजीजों। सानिए ज़हरा सारे सफर में नहीं रुकी, यहां तक के बाजार में चलती रही, पत्थरों की बारिश में कोहनियों के बल चलना पड़ा, बीबी चलती रही। मैंने पढ़ा ये वाहिद मकाम है मस्जिद जामे उमवी और यजीद के दरबार का ये दरवाजा है जहां सानिए ज़हरा बैठी। जैसी बीबी बैठी, एक मर्तबा इमाम सज्जाद आगे बढ़े, कहा फूफी अम्मा घबरा गई,
फूफी अम्मा परेशान है? कहा नहीं सैयद सज्जाद में घबराई नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। कहा फिर क्या वजह है, क्यों बैठी है? कहा सुनो सैयद सज्जाद, आज से 20 साल पहले जब मेरे बाबा अली के सर पे ज़र्ब लगी थी तो वक्त आखिर तमाम बच्चों को वसीयतें करने के बाद बाबा अली ने सबसे आखिर में मुझे अपने करीब बुलाया था और फिर मेरे कान में एक वसीयत की थी, जिसके बाद फिर मेरे बाबा की शहादत हो गई थी। और फिर 20 साल बनु हाशिम की खवातीन मुझसे पूछती थी, ऐ ज़ैनब आपके बाबा अली ने आपको क्या वसीयत की थी? मैंने कभी किसी को नहीं बताया। सैयद सज्जाद आज जिंदगी में पहली मर्तबा आपको बताने लगी हूं। मेरे बाबा अली ने मुझसे कहा था, ऐ बेटी ज़ैनब तुझे अपनी जिंदगी में एक मर्तबा यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़े। ऐ बेटी ज़ैनब तुझे अपनी जिंदगी में एक दफा यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। और बेटी ज़ैनब जब ऐसा वक्त आ जाए तो घबराना नहीं, परेशान ना होना। मैं अली वादा करता हूं मैं आऊंगा, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। ऐ सज्जाद मैं घबराई नहीं, मैं परेशान नहीं, मैं बस मेरे अजीजों यहां से एक गुफ्तगू का पहलू शुरू होता है कि सानिया ज़ारा ने क्या खुतबा दिया, लेकिन अब सकत नहीं कि मैं उसे बयान करूं। फिर जब भी हाजिर हुआ वो बयान करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं और इसी पर खत्म कर रहा हूं। मौला अली ने इस मौके के लिए क्यों कहा था अपनी बेटी से? इसलिए कि अली जानते थे कि मबादा मेरी बेटी हर मरहला तय कर ले, लेकिन इस मरहले पर पहुंचकर कहीं मेरी बेटी का जिगर फट ना जाए। इसलिए अली जानते थे जब ये बच्ची 5 बरस की थी, जब सैयदा ज़हरा की शहादत हुई थी और जनाब सैयदा ज़हरा को गुस्ल कफन दिए जाने के बाद जब मौला अली ने बच्चों को बुलाया था, सबसे पहले इमाम हसन को बुलाया, आए आखिरी मर्तबा अपनी माँ की जियारत करें। इमाम हसन ने जियारत की। फिर इमाम हुसैन को बुलाया गया, आखिरी मर्तबा आकर अपनी माँ फातिमा ज़हरा का दीदार करें। उन्होंने जियारत की, तफसीलात है लेकिन वक्त नहीं। और आखिरी जुमला यहां तक कि सबसे आखिर में फिजा से कहा, फिजा जाओ मेरी बेटी ज़ैनब से कहो उनकी माँ फातिमा ज़हरा की हम जनाजा लेके जा रहे हैं, आकर आखिरी मर्तबा आकर अपनी माँ के चेहरे की जियारत कर लें। सुनेंगे जैसी अली का पैगाम पहुंचा, जब फिजा पहुंची बीबी के हुजरे में तो बीबी ने क्या जवाब दिया? कहा अम्मा फिजा पहले बाबा से कहें उस हुजरे से बाहर तशरीफ ले जाए, पहले बाबा से कहें उस हुजरे से बाहर तशरीफ ले जाए। मबादा अपनी माँ की मैयत पर जाकर मुझे होश न रहे, मेरे सर से रिदा सिरक जाए, मुझे इस हालत में अपने बाबा के सामने जाते हुए शर्म महसूस होती है। अरे जो बीबी 5 बरस की उम्र में अपने बाबा के सामने जाते हुए शर्म महसूस कर रही है, अल्लाह जाने नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में कैसे गई।